दोस्तों, अमेरिका में एक अलग तरह की और एक अलग स्तर की लड़ाई चल रही है। यह लड़ाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बीच चल रही है। दोनों में से कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप हार्वर्ड पर बुरी तरह आग बबूला है। लगता है कि वो अपनी मांग मंगवाने को लेकर जिद लेकर बैठ गए हैं। पहले अनुदान बंद किया और फिर इतने से बात नहीं बनी तो विदेशी छात्रों के दाखिले पर रोक लगा दी। फंड एडमिशन पर रोक बावजूद हार्वर्ड अपने स्टैंड से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अपने रुख पर कायम है। वह विदेशी छात्रों की जानकारी देने के लिए तैयार नहीं। इस रोक पर ट्रंप पर ओवल ऑफिस में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि छात्र आएं। मैं चाहता हूं कि विदेशी छात्र यहां आएं। हमारे देश ने हार्वर्ड को कम समय में $5 अरब से भी ज़्यादा दिए हैं। किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। हमने इसका पता लगाया। यह हार्वर्ड बहुत ही यहूदी विरोधी हैं और जब हमने उनके रिकॉर्ड देखे तो पता चला कि देश ने उन्हें $5 अरब से भी ज़्यादा दिए हैं, वास्तव में उससे कहीं अधिक। और अब हम इस मुद्दे पर टकरा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। यह बहुत ही दुखद मामला है। यह एक ऐसा मामला है जिसे हम जीतेंगे। हम यह मामला हार ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास अनुदान देने का अधिकार है। हम अब उस तरह के अनुदान नहीं देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हार्वर्ड बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है। To students, well, we want to have great students here. We just don't want students that are causing trouble. We want to have students. I want to have foreign students. I think Harvard, it's close to 31%. That's a lot. Our country's given $5 billion plus to Harvard over a short period of time. Nobody knew that. We found that out. I wouldn't say that was a Doge thing, but we found that out over a period of time. That was sort of a Trump thing. We ended up in litigation for other reasons because they're very anti-Semitic. And in finding out and in going through the books, we found out that the country gave them $5 billion plus, much more than that actually. And we're having it out with them, and let's see what happens. I think we have a very good, it's a very sad case. It's a case we win. We can't lose that case because we have the right to make grants. We're not going to make any grants like that. But I don't think Harvard's been acting very nicely. I think Columbia wants to get to the bottom of the problem. They've acted very well. And there are other institutions, too, that are acting, but Harvard's trying to be a big shot. And all that happens is every 3 days we find another $100 million that was given. 2 days ago we found $200 million more. The money's given to them like gravy. I'd like to see the money go to trade schools where people learn how to fix motors and engines, where people learn how to build rocket ships. Because, somebody has to build those rocket ships. Yeah. And I'd like to see trade schools set up because you could take $5 billion plus hundreds of billions more, which is what's spent. Absolutely. And you could have the greatest trade school system anywhere in the world. And that's what we need to build his rockets and robots and things that he's doing, and to build lots of other things. And, I went to school with people. In some cases, they weren't good students, but they could fix the engine of a car better than anybody I've ever seen. They could take it apart blindfolded. They had an ability at that. And they did very well. They made a lot of money. It's a very skilled job. It's great. But I'd like to see a lot of money going into trade schools. I've always felt that. And we probably found our pot of gold, and that's what's been wasted at places like Harvard. And the money's been wasted. सुन लीजिए, ऐसी सोच लेकर ये महाशय अमेरिका को फिर से महान बनाने का सपना देख रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका अगर कभी कथित रूप से ग्रेट था तो इसलिए नहीं था कि उसने छात्रों की पढ़ाई लिखाई पर रोक लगाई और उसने फंड रोका, बल्कि दूसरों को अपनाने, उन्हें अपने यहाँ जगह देने की वजह से वह ग्रेट बना। अमेरिका के विकास और तरक्की के पीछे जितने वहाँ के इंडिजेनस हैं, उतना ही बाहर से आए लोगों का योगदान है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर तीखा हमला करते हुए ट्रंप ने कहा कि यूनिवर्सिटी द्वारा नामांकित किए गए कई विदेशी छात्र उपद्रवी हैं जो देश में अशांति फैला रहे हैं। उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते कि शॉपिंग मॉल में विस्फोट हो और हम नहीं चाहते कि कैंपस में दंगे हों, जैसे आपने बाइडेन के समय में देखे।
ट्रंप ने कहा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लगभग 31% विदेशी छात्रों को अपने यहाँ दाखिला देती है, जिनमें से कुछ ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जो बहुत कट्टरपंथी हैं। उन्होंने पूछा, 31% क्यों? यह संख्या इतनी ज़्यादा क्यों है? मुझे लगता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को यह संख्या 15% तक सीमित करनी चाहिए। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हार्वर्ड और अन्य स्कूलों में जाना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पहले से विदेशी छात्र हैं। भारत में भी जेएनयू में प्रोटेस्ट होते हैं। छात्र सरकार की नीतियों के विरोध में भी प्रदर्शन करते हैं। सरकार को भला बुरा भी कहते हैं, लेकिन यहाँ सरकार न तो फंड रोकती है और न ही किसी छात्र को दाखिले से वंचित करती है। दुनिया की बाकी बड़े नामी गिरामी विश्वविद्यालयों में भी ऐसा ही होता होगा। कुछ कैंपस में विरोध प्रदर्शनों से दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति इस कदर डर जाए कि उसे फंडिंग और विदेशी छात्रों को दाखिला देने से वंचित करना पड़े। यह दिवालियेपन की निशानी है जो एक राष्ट्रपति को दुनिया के टॉप 3 में विश्वविद्यालय में से एक से उलझना पड़ रहा है। छात्र यहाँ आते हैं पढ़ने और अपना भविष्य बनाने। कुछ हो सकते हैं कि उन्हें पॉलिटिक्स करनी हो, लेकिन कुछ के लिए सभी विदेशी छात्रों के पढ़ाई पर कुठाराघात करना सही नहीं है। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।